Hello and welcome guys to a new trade video. And being aware that I've been doing very poor trades for the last few days, I'm currently very much pumped. I mean, I'll spend enough time on analysis today, and then maybe if I find something good, I'll execute. So the first thing that I used to do was I would just instantly go up here and log into my TradeOvate account, so that actually set me to execute trades here on the charts without much analysis. So Stracco I've left behind today. So let's start with the day analysis. So markets अभी all time high पे चल रहे हैं. As you can see, currently markets are at all time high. So let me go through the charts once, and so the first part of video is going to be about the plan that I'm wishing to execute in the markets today. But before that, let's see what the market conditions are and what conditions will be right for us to execute our trades. So as we can clearly see here, यहाँ पे markets are at all-time high. Now let's draw the recent support areas and the resistance areas. So this was the support area, and this should have been a resistance area, but market has almost crossed this area. So I'll mark it as red for now. I'll mark it as red for now, right? So the this is the daily range. So daily range is sufficient. This much range is sufficient. And let's go to 4-hour charts. We can clearly see supports held here for quite long. All right, so now market is at the top right now. So let me shift this to a little bit till here, because this seems like the right support area. And support area is not a support line, so support areas can vary. So lines do not have to respect everything all the time. But in case of Nasdaq, the lines also do get respected. So at times the price would come, touch the line, and then quickly go away. So even that has been the case. Yesterday it was the case. I can show you that. But before that, let's mark the area. So this whole area is an area of support, right? So this is an area of support. Let's place it right here. And then this whole area is an area of resistance, which I think is currently looking like it has been conquered, but the candle hasn't closed this candle. So probably it can the candle has just begun to form. So it's a 4-hour candle, and the currently time remaining for the close of this candle is 3 hours and 54 minutes. So the candle can close in any direction, we don't know yet. So let's focus on 1-hour chart right now, because for intraday that's like the biggest time frame that we can see. So for us, I can shift that line till here, till this point, or maybe this point also works. Okay, so for the hourly charts, the direction for the market has been towards the upside. So I'll mark that as well. So markets have been traveling towards the upside on the hourly charts. Also, market has very recently broke above these highs. So this may now turn as a support area for markets, right? So the direction for us, the recent direction for us is towards the upside. Now we can go to the 15-minute time frame. So for the 15 minutes, we can closely see that the support area is this, right? And let's see how this candle closes. I mean, the markets look really pumped. They can go much higher from here, but I don't know. Let's wait for some real good price action to form. Let's see what happened on 3 minutes. Okay, so price just came in and flew by. So that was the case on 3 minutes. I'll stick to 15 minutes for some time. I'll do my analysis on 15 minutes for some time. So this is like the area of
break. So the resistance was broken here. Let's make it green. This makes more sense for the time being. For the time being. Okay, so the direction is up. On the 3 minutes, let's see what has happened. The movement looks good. From the candles, I can definitely see that the power was towards the upside. You can see the spikes. The sells were also very weak, so it was a clear indication that the price was ready to go up. Now it may not sustain there, but it was definitely there. So I'll take this to the highest point here. So the highest point is somewhere around here. So let this be the support area, right? Now we look for areas in market from where a bounce could come or from where a rejection could come. Currently market is in uptrend, so I'll wait for pullbacks, right? So we should be trading on the side of trend. Trend is our friend. So that's what our plan should be. And that's how I'm looking to trade. But let's see if I see something good, then only I'll trade, and I'll trade size today. I'll trade a good size today, not $100. I'll probably trade like $250 of setup. So I'll wait. It may take me 1 hour or 2 hours to see something concrete, and then I might just trade. But let's wait for something to form on the 3 minutes chart, and then we'll decide what course of action we need to take. I'll wait very patiently today. I'll not commit any stupid moves in haste. I'm very much aware of the situation. Okay, guys, the candles are forming. Let's see if this dip gets bought or um, we see some kind of a small pullback here. Because usually at all-time highs, the falls are pretty strong. So, the sell setups work very well. But currently, there's no setup for me, so I won't touch it right now. It's not ready yet. And also, I'm looking to buy instead of sell because the market has shown a great uptrend. So, let's not get into trading reversals again because that has been killing me for a long time now. So, I'll instead stick with the trend and trade pullbacks probably. So, let's wait and see what sort of opportunities come our way. See, the dip got bought here as well. The candle closed very well. Let's just wait and watch of what can happen. Okay, guys, it might look like the price is not moving much, but the range is pretty big here. So the price has already moved 20 points. So on Nasdaq, one single contract of mini, this is micro. On minis, 1 point is $20. So $400 worth of move in one single unit of Nasdaq minis. So this is a pretty big move. And once again, price came towards the setup, towards the support and bounced off. So dips are getting bought right now. Let's again go back to 3 minutes and let's not, get confused here. Let's wait for the right opportunity to come and then we'll trade. Okay, guys. Let me see on 1 minute क्या picture चल रही है. सो दिस एरिया इज़ क्रूशल. ये वाला एरिया क्रूशल है. या तो यहाँ से बाउंस आ सकता है या तो यहाँ से प्राइस थोड़ा सा क्रैश कर सकता है. अगेन सी डिप्स आर गेटिंग बॉट. लेट्स सी कहाँ जाता है प्राइस. नॉट द बेस्ट सेटअप राइट नाउ. अभी बहुत अच्छा सेटअप नहीं है 1 मिनट के हिसाब से. ठीक है फॉर स्कैल्प्स, बट आई डोंट थिंक इट्स अ प्रिटी गुड सेटअप टू ट्रेड राइट नाउ. अभी क्या हो सकता है ना कि प्राइस एकदम से ये जोन तक आ सकता है डेफिनेटली. सो इतने पॉइंट अर्न किए जा सकते हैं विथ दिस एज अ स्टॉप लॉस. बट फॉर दैट दिस एरिया नीड्स टू गेट क्लियर्ड. यहाँ पे प्राइस पलट के नीचे आ जाना चाहिए. अदरवाइज दिस एरिया इज बैड. यहाँ से प्राइस पलट के ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो सेकेंड कोर्स ऑफ एक्शन अगर होता है तो उसमें हम वी कैन जस्ट सी कि क्या बनता है यहाँ पे. लेट दिस बी दी स्टॉप लॉस. अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है. वील वेट फॉर द क्लोज. एक दो कैंडल का वेट करना चाहिए. जब ये कैंडल का लो ब्रेक होता है तब हमें एंटर होना चाहिए.
लेट्स सी गाइस, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि डिप्स आर गेटिंग बॉट. सो दिस इज लाइक अ टेस्ट, यू नो गाइस, of those people who like to short markets at the top. So यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार एक रेड कैंडल बनी बड़ी, लेट्स शॉर्ट द मार्केट्स यहाँ पे. बट यू नो द मार्केट्स माइट फर्स्ट ट्रैप देम. उनको हो सकता है पहले ट्रैप कर दे एंड देन इट माइट गो. तो लेट्स वॉच. मैंने जो लाइन बना के रखी है, मैं जो लाइन बना के रखी है उसको क्रॉस कर जाता है तो देन इट बिकम्स इनवैलिड. लेट्स सी. Let's also at the same time keep the 3 minutes chart on the screen. Right guys, see, जिनके stop loss ऊपर होंगे they will get trapped and then the market might go towards the downside. Possibility है, not surety, but there is a possibility. So let's see क्या होता है. These are all algorithms guys. We need to be very careful. जो आपके बहुत ही obvious setups होते हैं ना, वो सब काम नहीं करते हैं US markets में. US markets are very smart and I can pretty much guarantee कि ये algorithms के थ्रू ही रन हो रहे हैं these markets. Most of all, मतलब almost I can say a big chunk of it is being run by algorithms. बहुत कम traders होंगे जो trade करते हैं. It is a lot of algorithms trading. वो पहचानती हैं कि आप कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ पे एग्जिट करेंगे. सो दे नो वेरी वेल. अभी इट इज़ नॉट रेडी येट. दिस इज़ नॉट रेडी येट. अगेन इट इज़ प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द मार्केट्स अगेन. इट इज़ ट्राइंग बट लेट्स सी. लो ब्रेक होता है तो भी चांस है बट थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना बाइंग थोड़ी एग्रेसिव थी. सो आई एम नॉट ट्रस्टिंग दिस राइट नाउ कि बाइंग बहुत एग्रेसिव है. सी द स्पाइक्स. थोड़ी सी लेस एग्रेसिव बाइंग होगी यहाँ पे, क्रॉस कर जाएगा. अभी भी जैसे आई एम नॉट हैप्पी. इसको थोड़ा होल्ड करना चाहिए यहाँ पे. एक आध मिनट होल्ड करके नीचे जाता है तो इट इज़ वेरी गुड. बट एकदम से निकल जाता है ना, सो दीज डिप्स विल गेट बॉट बिकॉज मोर पीपल विल शॉर्ट द मार्केट्स हियर. फंस जाएंगे बहुत सारे लोग यहाँ पे, शॉर्ट करके फंस जाएंगे. स्टॉप लॉस उनके होंगे यहाँ तक के, टॉप तक के. सो हो सकता है मार्केट एक बार फिर से दोबारा ऊपर आ जाए अब, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके होंगे एट दिस पॉइंट. देखते हैं मार्केट उनके स्टॉप्स का क्या करता है. हो सकता है दोनों के स्टॉप्स लेके जाए साथ में. इन पिछले पहले जो एंटर हुए उनका भी और जो अभी एंटर हुए उनका भी. सो लेट्स सी. देखते कुछ ज़रूरी नहीं है. दिस इज़ ओनली माई हाइपोथेसिस जो हो सकता है वैलिड हो सकता है नहीं हो. बट एज फार एज आई कैन सी इट अभी तक तो इट इज़ होल्डिंग ट्रू. लेट्स सी. इसे होल्ड करना चाहिए guys. ये जो विक बनी है ना नीचे, दिस विक इज़ नॉट गुड. ये विक अच्छी नहीं है. ये विक बहुत ख़राब है, अच्छी नहीं है ये. लेट्स सी. जो पहले ट्रेडर्स थे ना जो इस कैंडल पर एंटर हुए उनका देखते हैं स्टॉप. अभी इस एरिया में होल्ड करना इज़ इम्पॉर्टेंट. होल्ड करके नीचे जाता है तो इट विल बी अ वेरी गुड सेल. बट नहीं करता है तो देन इट माइट बी अ गुड ट्रैप. ओके गाइस, हाइपोथेसिस तो यही था कि यहाँ पे और यहाँ पे इन दो एरियाज में स्टॉप लॉसेस लगे होंगे लगभग यहाँ तक. सो देखते हैं किसके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं. यहाँ पे भी बहुत सारों के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे. इस कैंडल के ऊपर लगे होंगे, इस कैंडल के विक के ऊपर. जो यहाँ पे एंटर हुए होंगे उनके इस कैंडल के विक के ऊपर हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है. देखते हैं. पहला स्टॉप एरिया ये वाला है 18416. देखते हैं ये वाला एरिया हिट होता है या नहीं. इसको मैं मार्क कर देता हूँ. देखते हैं क्या प्राइस यहाँ तक आ पाता है या नहीं. नहीं आ पाता है, सस्टेन करके नीचे जाता है तो इट माइट बी अ हेल्दी मूव. बट अगर अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्टॉप्स एक्यूमुलेट हो चुके हैं क्योंकि तो मार्केट एक बार उनको उड़ाएगा. तो पहला एरिया तो मार्केट टच कर चुका है. लेट्स सी ऊपर वाले एरियाज में क्या होता है. लेट्स सी.
ओके, पहला जोन तो डेफिनेटली क्लियर हो चुका है, यहाँ के सारे स्टॉप्स जा चुके हैं। ये वाला एरिया देखते हैं हम, और ये वाला एरिया देखते हैं। भले हो सकता है जो टॉप टॉप का एरिया हो वो ना हो एक बार को, क्योंकि नो बडी कैन प्रेडिक्ट द टॉप्स। सो हो सकता है यहाँ तक ना आए प्राइस, पर यहाँ तक डेफिनेटली आ सकता है। प्राइस डिस्कवरी में यहाँ तक आ सकता है। लेट्स सी। सो एक जोन तो क्लियर हो चुका है। लेट्स सी नाउ अबाउट द सेकेंड जोन। एंड यूजुअली जो मार्केट है ना, डबल टॉप्स बनाता है। डबल टॉप्स मतलब अभी एक टॉप बना है 3 मिनट के चार्ट पे, एक सेकेंड टॉप बनाने आएगा डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है। बट अभी क्योंकि सेलर्स की स्ट्रेंथ मुझे अच्छी लग रही है, बट देखते हैं कैंडल का क्लोज कैसा होता है। तो मार्केट एक बार आ सकता है डेफिनेटली एक डबल टॉप बनाने। वो डबल टॉप के बाद जो गिरेगा ना, तो अच्छा गिरेगा, क्योंकि तब तक स्टॉप्स खत्म हो चुके हैं बहुत सारे। एंड ओनली स्मार्ट ट्रेडर्स विल स्टे इन मार्केट्स। सो लेट्स सी, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए कैंडल ग्रीन क्लोज हो रही थी, बट अब रेड हो रही है। सो दिस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। आई डेफिनेटली अग्री, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल। लेट्स सी, लेट्स सी। टाइम नहीं लगा पलटने में, टाइम नहीं लगा। मोर सेलर्स आर एडेड हियर, मोर सेलर्स आर एडेड। देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। देर इज एग्रेशन इन बाइंग राइट नाउ, देर इज एग्रेशन इन बाइंग, बट लेट्स सी। ओके गाइज, देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी, जैसा मैंने बोला है यहाँ पे नीचे प्राइस आके एक बार जा सकता है, बट देखते हैं। वो फर्स्ट ट्रेड है ना मेरा अभी सुबह का, इसलिए आई एम बीइंग वेरी कॉशियस। यहाँ पे मेरा अभी लॉकड इन भी नहीं है अकाउंट, सो आई कैन नॉट प्लेस एनी ट्रेड राइट नाउ। सो आई विल नॉट जंप इन, लेट्स वॉच एंड अंडरस्टैंड कि होता क्या है। लेट्स जस्ट ऑब्जर्व, क्योंकि मैंने ये पैटर्न नैस्डैक में ऑब्जर्व किया है कि नैस्डैक जो है ना, हमेशा एक डबल टॉप बना के फॉल होता है। ऐसा सिंगल सिंगल ऊपर जाके मूव में फॉल नहीं होता है। वो डबल टॉप बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पे इट इज़ प्राइस इज होल्डिंग बिलो दिस लेवल। सो मुझे लगता है कि यहाँ से भी जा सकता है प्राइस एक बार को, बट लेट्स सी कि डबल टॉप बन पाता है या नहीं। यहाँ पे ट्राई तो कर रहा है प्राइस, ट्राई तो कर रहा है, ट्राई तो कर रहा है प्राइस, डेफिनेटली आई कैन सी दैट। एक सॉर्ट ऑफ डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ मुझे दिख रहा है ऑन 3 मिनट्स। हमारी हाइपोथेसिस तो यही थी कि इन एरियाज तक स्टॉप्स हैं। ओके गाइज, जो नए सेलर्स एंटर हुए थे उनके स्टॉप्स भी गए, इस कैंडल के टॉप के स्टॉप्स भी गए, ये स्टॉप्स भी गए। ओके गाइज, सो स्टॉप्स तो सबके ट्रिगर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे मेरे हिसाब से तो कोई स्टॉप नहीं होगा ऊपर, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल माइट हैव और मे नॉट हैव सोल्ड हेयर, बट यहाँ तक तो डेफिनेटली थे स्टॉप्स। सो देखिए क्या चालाक मार्केट है, एल्गोरिदम्स हैं। आप समझ लीजिए कि जो ऑनेस्ट बेसिक सेटअप्स होते हैं ना, दोज आर फेल। और यूएस मार्केट्स बहुत क्विकली मूव होते हैं, तो वो सेटअप तो फेल हो गए। अब ये हाइपोथेसिस तो हमारी करेक्ट हो गई कि मार्केट ने पहले सारे पार्टिसिपेंट्स को आउट किया। ऑलराइट, सो दिस वाज द ट्रू हाइपोथेसिस। अब मार्केट एक ऊपर का मूव भी दिखा सकता है, या सेकेंडली एक डबल टॉप मूव में नीचे फॉल हो सकता है। ओके, मार्केट में इनके स्टॉप्स भी निकल चुके हैं। अगर किसी ने इस कैंडल के ऊपर स्टॉप्स लगाए थे तो वो भी जा चुके हैं। अब देखते हैं मार्केट फॉल होता है या नहीं। एंड अभी क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है, सो आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रेडिक्ट फॉल, बस मैं देख रहा हूँ कि मार्केट कर सकता है या नहीं। क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ पैटर्न आई हैव सीन एट अराउंड ऑल टाइम हाइज। ऑल टाइम हाइज के आसपास हमेशा मैंने ये पैटर्न्स देखे हैं, डबल टॉप बना के मार्केट फॉल होता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, इट इज़ जस्ट अ हाइपोथेसिस। और जो शॉर्ट साइड के ट्रेड्स होते हैं ना गाइज, उनमें फिर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर हो जाते हैं ऐसे ऐसे टाइम पे, ऑल टाइम हाइज पे। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेड देम, बट व्हेन इफ़ यू आर एबल टू ट्रेड देम, वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देके जाते हैं। सी गाइस, विक्स विक्स हेयर आर द साइन कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं बहुत सारे। इन एरियाज में बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं, जो पहले प्राइस को यहाँ तक लेके गए। देर आर सेलर्स सिटिंग हेयर।
लेट्स सी। नो, ऑल टाइम हाई वॉज हेयर। ओके, ऑल टाइम हाई यहाँ पे है। लेट्स सी। राइट नाउ होगा क्या कि प्राइस विल स्टे हेयर फॉर सम टाइम, पॉसिबिलिटी। एक बार फॉल दिखाएगा और लगभग यहाँ पे अगर क्लोज दे देता है तो उसके बाद ये फॉल हो जाएगा। ऐसा मेरा हाइपोथेसिस है। तो लेट्स सी वो ट्रू होल्ड करता है या नहीं, क्योंकि एज पर माय एनालिसिस एंड माय ऑब्जर्वेशंस मैं नैस्डैक में ये पैटर्न देखता हुआ आ रहा हूँ। सो अभी यहाँ पे तो किसी के स्टॉप्स थे नहीं, अभी यहाँ पे फिर कोई और ने ट्राई किया होगा सेल करने का, बट जो पुराने ट्रेडर्स थे वो सब तो इस एरिया से आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, जो सेल करने की कोशिश कर रहे थे। अब मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करेगा, थोड़ी देर होल्ड करेगा डेफिनेटली, यहाँ बहुत सारे स्टॉप्स खाएगा, उसके बाद कहीं जाएगा। Okay, so that is the kind of things I'm looking at. Hold कर रहा है market at the top around here, you can see. It will hold for some time. दो तीन कैंडल होल्ड किया, देखते ये कैंडल भी ऊपर क्लोज हो सकती है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। लेट्स सी। एक बार मार्केट आएगा यहाँ तक, इन एरियाज को नीचे तक टेस्ट कर सकता है, उसके बाद एक अगेन अप मूव दिखा सकता है, फिर जो फॉल आएगा वो बहुत अच्छा आएगा। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच कि होता क्या है यहाँ पे। और सेकंड केस ये भी हो सकता है कि बायर्स जो हैं ये, क्योंकि सपोर्ट एरिया बना हुआ है, तो बायर्स यहाँ से और बाइज एक्वायर करके प्राइस को अगेन अपसाइड की तरफ लेकर जा सकते हैं। बट जैसा मैंने आपको बोला, डबल टॉप्स आई कैन डेफिनेटली मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्राइस यहाँ पे डबल टॉप्स बनाता है ऑल टाइम हाइस के आसपास। और नॉट जस्ट एट ऑल टाइम हाइज, अगर प्राइस बहुत टाइम से ऊपर की तरफ जा रहा है, सो ऐसे मूवमेंट्स मैंने देखे हैं, सक्सेस हो जाते हैं। अब यू कैन डेफिनेटली सी राइट कि यहाँ पे इतने पावरफुल मूव के बाद कोई सेल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो किसी की हिम्मत नहीं होती है यहाँ पे सेल करने की। यहाँ पे लोग कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि उनके स्टॉप्स जा चुके हैं तो यहाँ पे बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है। नाउ देखो, इसका क्लोज अगर यहाँ पे कहीं पे मिल गया तो इट कैन गिव अ वेरी शार्प फॉल, इट कैन गिव अ वेरी शार्प फॉल फ्रॉम हेयर। बट मैं फॉल को लेने की इच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। सो मैं थोड़ा सा अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिवर्सल पैटर्न्स को ट्रेड करने की कोशिश ना करूँ, इंस्टेड मैं ट्रेंड के डायरेक्शन में कुछ ढूंढूँ अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो। ओके गाइस, जैसा मैंने बताया वैसा दिख रहा है मुझे होता हुआ अभी, बट कैन नॉट गारंटी यहाँ पे, क्योंकि बाइंग अभी भी स्ट्रांग तो है बट उतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है। लेट्स सी। मैंने जैसे बोला ना, यहाँ पे कहीं पे क्रैश होता है, सो इट कैन गिव अ गुड क्रैश। एक छोटी सी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है। यहाँ पे एक शॉट्स बन सकते हैं। लेट्स, आई विल टेल यू कि कैसे बनेगा। स्टॉप्स हो सकते हैं यहाँ पे, एंड देन जो सेल आएगा वो काफ़ी अच्छा आ सकता है। यहाँ पे पहला सपोर्ट एरिया है, बट ऑनेस्टली मुझे लगता है यहाँ तक आ सकता है सेल। बट लेट दिस क्लोज, अच्छे से क्लोज होने देते हैं, एक एक मौका और देंगे इसे। ओके, क्लोज होने से पहले ही जा चुका है लोस तोड़ के। ओके, लेट्स सी। क्विक मोमेंटम में गाइज नहीं एंटर होना चाहिए, बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि प्राइस क्या होता है ना, बहुत लुक्रेटिव कर देता है चांस। ऐसा लगता है कि फोमो हो जाता है, बहुत सारों को एंटर हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी यहाँ पे ऑल टाइम हाइस पे खड़ा है तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए नॉर्मल सिनेरियोज में जो है ना हमें वेट करना चाहिए। क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग बाइस के बाद आपको क्या लगता है एक सेल इतनी आसानी से काम कर जाएगा? सो देर इज़ डेफिनेटली अ चांस ऑफ फेलियर यहाँ पे। स्टॉप्स अबाउट दिस कैंडल अगर एंटर भी हुए हैं तो नाउ लेट्स सी इसमें कितना हमें मिलता है। लेट्स सी। ये पहला एरिया ऑफ सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस बाउंस कर सकता है, हो सकता है इसके पहले से ही बाउंस कर जाए।
लेट्स सी, 1:1 सबसे पहले टारगेट करते हैं। ओके, 1:1 तो यहाँ पे अचीव हो चुका है ऑलरेडी। नाउ लेट्स सी 1:2 तक देखते हैं कि क्या प्राइस आ पाता है। जल्दी एंटर करना मतलब गाइज वही प्रॉब्लम है कि आप कितनी जल्दी आपका एग्जीक्यूशन है। अगर आपको पता था कि लो ब्रेक होने पर इतना मूव आ सकता है, सो हम लोग टारगेट सेट करके बैठ सकते थे। अगर आपके पास हॉट कीज़ आपके सॉफ्टवेयर में, तो आप उससे भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके आउट हो सकते थे इस कैंडल के क्लोज तक। लेकिन वही बात है, मैंने जैसा बोला था कि हमें भागती हुई कैंडल में एंटर नहीं होना चाहिए। हमें टाइम देना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे पुल बैक के बाद जो सेल आएंगे ना, सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ सेल जो मोस्ट पीपल विल लुक टू ऐड। बट क्योंकि यहाँ तक का रिट्रेसमेंट है, उतना तक ठीक था, हेल्दी था। लेकिन अब जो लो क्रॉस होगा ना, वो दैट विल बी मच बिगर। बट नहीं होता है तो इट कैन कम बैक अगेन, ऊपर तक आ सकता है। सो मार्केट्स में टेस्ट, लेट्स सी। Volumes rising rapidly. Volumes rapidly rising. See, buyers are doing their best. अभी क्योंकि सपोर्ट एरियाज के आसपास भी खड़ा है ना प्राइस, इसलिए आई वॉज नॉट लुकिंग टू सेल। बहुत ट्राई कर रहे हैं बायर्स यहाँ पे। डिप्स आर गेटिंग बॉट, आई कैन क्लियरली सी। बट देखते हैं, देखते हैं। अगर ऐसे मूवमेंट्स में जब तक आपके टारगेट्स लगे हुए नहीं है ना सिस्टम में, तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। सो जब ऐसी विक्स वाली कैंडल्स बनती है ना, तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रेड करना मार्केट्स को, क्योंकि इमोशन रोलर कोस्टर जैसे बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ऑलमोस्ट नियर 1:2, ऑलमोस्ट नियर 1:2। बहुत ज़रा सा ऊपर चले गया डिप करके। बट लेट्स सी, यहाँ पे क्योंकि सपोर्ट बना हुआ है, टोल्ड यू, यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, ग्रीन लाइन इज सपोर्ट। ये विक्स मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है, विक्स अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ से प्राइस पलट सकता है टूवर्ड्स अपसाइड, एक मोमेंट और दिखा सकता है। अब गई ये क्या करेगा ना प्राइस, इट विल कम टिल हेयर, यहाँ तक आ सकता है। नैस्डैक में मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्राइस जो है ना स्टॉप लॉस के आसपास तक आ जाता है, और बहुत सारे लोग डर के एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस से जस्ट पहले प्राइस पलट सकता है। सो लेट्स सी, एक वो भी हाइपोथेसिस है मेरी। यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, तो प्राइस जो है ना स्टॉप लॉस से जस्ट पहले तक आ सकता है नैस्डैक में। इट इज़ माई हाइपोथेसिस, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। सो लेट्स डिलीट दीज।
एंट्री एग्जिट तो मैंने आपको बता दिया था, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फॉलो किया है प्राइस ने। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है। ये एरिया जो है ना, अब रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, ये वाला। सो प्राइस में कम, में नॉट कम, आई डोंट नो। और जनरली सेकंड केस में ये भी होता है कि प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करता है नैस्डैक में। सो प्राइस जो है ना यहाँ पे होल्ड भी कर सकता है बहुत देर, आपको डरा भी सकता है, फिर एक बड़ी सी विक बना देगा ऊपर साइड पे और प्राइस क्रैश कर जाएगा। सो बोथ पॉसिबिलिटीज़, अगर आप बड़ा होल्ड करते ट्रेड्स को तो पहले तो यहाँ पे आपको एक टारगेट तो ले लेना चाहिए था, और सेकंड टारगेट आपका जो होता है ना वो काफ़ी डीप लेना चाहिए नीचे। बट यू नो हाँ, थोड़ी क्वांटिटीज होल्ड करनी चाहिए क्योंकि प्राइस आता है नैस्डैक में ऊपर तक, आई हैव सीन दिस, काफ़ी ऊपर तक आ जाता है, उसके बाद जाता है नीचे। सो थोड़ा सा डराता है। नैस्डैक इज़ अ वेरी स्मार्ट इंडेक्स, बहुत डराता है ये ट्रेडर्स को, बट जाता आपके फेवर में ही एंड में, ऐसा मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया। अभी भी जैसे अगर हमने उस प्राइस पे एंटर हुए हैं जहाँ पे मैंने इंडिकेट किया है, सो वी आर रनिंग इन प्रॉफिट्स राइट नाउ, कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी हम लोग आए हैं, बट अभी करंटली वी आर रनिंग इन प्रॉफिट्स। एकदम बिलीव नहीं करना चाहिए ऐसे सेल्स पे, थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। अब देखते हैं बायर्स कितना खींच पाते हैं, बायर्स में अगर पावर हुई ना तो कहीं नहीं जाएगा मार्केट, ऊपर ही जाएगा। बट बायर्स अगर वीक हो गए, थोड़े से भी वीक हो गए यहाँ पे, तो फॉल हो जाएगा। वाई आई डिड नॉट टेक दिस सेटअप, क्योंकि मुझे जो है ना बायर्स मार्केट में सेल लेने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं यही गलतियां करता जा रहा हूँ बहुत दिन से कि मैं रिवर्सल्स पैटर्न ट्रेड करता हूँ। लेकिन रिवर्सल्स में क्या होता है ना, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड तो अच्छा मिलता है, लेकिन ऐसे कम चांसेस होते हैं जब आपके ट्रेड सक्सेसफुल होते हैं। दिस टाइम इट विल हिट 1:2, प्रिटी श्योर कर जाएगा हिट। 1:3 भी देकर जा सकता है ये, देखते हैं। सी गाइस, ऑलमोस्ट नियरिंग 1:2, एक बार 1:2 अचीव करके देखे जाए, देन वील प्लान फॉर 1:3। ओके, लेट्स प्लान फॉर 1:3 नाउ। देकर जा सकता है गाइस, इट इज़ एट ऑल टाइम हाइज, सो लेट्स सी 1:3 दे सकता है। ऑलमोस्ट इट वॉज नियर 1:3, बट देखते हैं। So, फॉल बहुत शार्प आती है गाइस नास्डैक में, आई हैव सीन दिस, फॉल बहुत शार्प आती है। मैं रोज़ गलती ये करता हूँ कि मैं ऐसा फ्लो में नहीं आता हूँ मार्केट में, जो है ना हमें पहले फ्लो में आना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड दी स्टोरी, तो स्टोरी जब मैं समझ के ट्रेड करता हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा ट्रेड करता हूँ, जैसे अभी आप देख सकते हैं। लेकिन
जब मैं स्टोरी नहीं समझता हूँ एकदम से, नींद में से उठ के या फिर कहीं और से काम से आके एकदम से इफ़ आई स्टार्ट टू ट्रेड, तो मेरा एनालिसिस मैं करता ही नहीं हूँ। मतलब द काइंड ऑफ बैड हैबिट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट, सो दैट वाज द रीज़न कि मेरे ट्रेड्स क्यों ख़राब जा रहे हैं। सो टुडे आई डिसाइडेड कि मेरे फेवर के सेटअप्स होंगे तो ही आई ट्रेड, अदरवाइज आई फॉलो द स्टोरी। तो अभी स्टोरी फॉलो कर रहा हूँ, जब मुझे मेरे टाइप का सेटअप दिखेगा तो आई टेक, इवन दो दिस वाज वन ऑफ अ काइंड ऑफ सेटअप दैट आई टेक, बट मुझे आज रिवर्सल लेने की इच्छा नहीं थी। एंड यू कैन सी प्राइस का रिवर्सल देखिए, पॉइंट जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जा सकता है उस पॉइंट के ऊपर ज़रा सा भी प्राइस नहीं आया। सो ड्रॉडाउन्स आए ही नहीं, इसलिए आई डू नॉट, मैं लेता ही नहीं हूँ इन मोस्ट केसेस में। स्टॉप लॉस पूरा लेता ही नहीं हूँ, मैं कट कर देता हूँ। अब जैसे मैंने पिछले एक दो ट्रेड्स में स्टॉप लॉस भी लिया है, सो वो मेरी गलती है, क्योंकि मैं ऐसे ट्रेड्स लेता हूँ जो मेरी एंट्री के बाद फेवर में चले ही जाते हैं। अगर नहीं जाते तो वो मेरे लिए बैड सिग्नल होता है। यहाँ से प्राइस माइट नॉट गो अब, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे एकदम से सेल आया लेकिन एकदम से डिप बाय हो गई, और ये प्राइस सपोर्ट ये आसपास है, तो मतलब ये वाला बड़े टाइम फ्रेम पे तो विक बन गया, ये वाला पोर्शन बड़े टाइम फ्रेम पे विक बन गया। सो अब ये ट्रेड जो है ना, ये ट्रेड का आइडिया जो था वो मार्केट ने रिस्पेक्ट कर दिया उसे। रिस्क टू रिवॉर्ड कितना देता है वो अलग बात है, बट मार्केट ने इस ट्रेड आइडिया को रिस्पेक्ट कर दिया। अब हो सकता है कि ये ट्रेड आइडिया कंप्लीटली फेल हो जाए। मतलब अब जो लेट एंट्री करेंगे ना, यहाँ पे कोई सोचेगा कि अब शॉर्ट जाते हैं, तो अब उनके लिए मार्केट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस बड़ी कैंडल पे बहुत सारे लोग शॉर्ट गए होंगे। सो मार्केट एक बार आके उनके स्टॉप्स खा के जा सकता है, एंड देन अगेन उसके बाद फिर फॉल करना हुआ तो कर सकता है, या फिर नहीं भी करे, हो सकता है कंप्लीटली ऑपोजिट चले जाए। आई डोंट नो, बट ऐसा मुझे लग रहा था, ऐसा आई सीन इन नैस्डैक। मेरे पैटर्न्स मैंने ऐसे ऑब्जर्व किए हैं कि होता है। अभी क्या हो रहा है ना, जो प्रॉब्लम ये है मार्केट्स में कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई के सपोर्ट एरियाज के आसपास सेल ऑफ हो रहा है। सो ये सेल ऑफ जो होता है ना, स्मूथ नहीं होता है। अभी आप देखेंगे कितनी विक्स बनी हुई है, ये विक्स बनी हुई है। सो ये सेल ऑफ जो है ना, स्मूथ नहीं होगा, कभी भी आपको स्मूथ नहीं मिलेगा। इधर पावर स्ट्रगल चल रहा है अभी, क्योंकि बायर्स जो हैं, बहुत सारे जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो सपोर्ट एरियाज पे भी बाय करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, प्राइस जो है उन्हें कम प्राइस पे दोबारा मिल रहा है। जो कमोडिटी या जो भी वो बाय कर रहे हैं, स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, वो कम प्राइस पे उन्हें सपोर्ट एरियाज के आसपास मिल रहा है। एंड जो सेलर्स हैं वो फाइट कर रहे हैं उन बायर्स के अगेंस्ट, क्योंकि सेलर्स को अब जो है ना, उनकी बैंड तब बजेगी जब बायर्स ज़्यादा क्वांटिटीज़ में ख़रीद लेंगे और महंगे में ख़रीद लेंगे, तो उनके स्टॉप्स चले जाएंगे सेलर्स के। सो अभी दोनों पार्टीज़ अपना ट्राई कर रही हैं। सेलर्स ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट्स में से अपना माल आउट करते जाएं। अब जब तक बायर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे तब तक ये प्राइस होल्ड करेगा, जैसे ही उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा कोलैप्स हो जाएगा, या पैसा खत्म हो जाएगा कोलैप्स हो जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि बायर्स कब तक अपना लॉस ले सकते हैं। अभी क्लियरली आप देख सकते हैं ऑन 3 मिनट्स की प्राइस इज नियर सपोर्ट एरियाज। अभी देखते हैं लास्ट 15 सेकेंड्स, कुछ भी हो सकता है। ये कैंडल की क्लोज में अभी है टाइम, कुछ भी हो सकता है। कैंडल अच्छी क्लोज हुई है टूवर्ड्स डाउन साइड, बट अगेन कैन नॉट गारंटी। अब यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोगों ने बाइंग कर ली होगी यहाँ पे, डिप बाय कर ली होगी। अब हो सकता है कि मार्केट एक बार इनका स्टॉप खाने आए, एंड देन उसके बाद ऊपर जाए। सो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार इन लोगों के स्टॉप्स खाने ज़रूर आ सकता है नीचे की तरफ। सो पॉसिबली यहाँ तक आ सकता है, 340 तक आ सकता है मार्केट। लेट्स सी।
ऐसा ज़रूरी नहीं है, जस्ट एन हाइपोथेसिस। दो चीज़ें हो रही है गाइस, यहाँ पे सेलर्स बहुत सारे अगेन एंटर हो सकते हैं। वो देखते होंगे कि यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, सो एक सेल और एंटर कर देते हैं। एंड देन प्राइस क्या कर सकता है कि इस कैंडल के ऊपर स्टॉप लगाएंगे वो लोग, तो प्राइस एक बार यहाँ तक आ सकता है, इस स्टॉप तक आके दोबारा फॉल कर सकता है। बट उसके पहले मुझे लगता है कि एक बार जो है ना, एक सेल ज़रूर आ सकता है, पर अब देखते हैं क्या होता है। बायर्स तो कोशिश करेंगे कि ऑल टाइम हाई तक चले जाए प्राइस, वहाँ पे उनके सेल टारगेट्स हो सकते हैं, बट वी डोंट नो। कुछ लोगों ने डबल बॉटम देख के बाय किया होगा, सो देखते हैं कहाँ तक जाता है प्राइस। इस कैंडल के ऊपर भी बहुत सारों के स्टॉप्स हो सकते हैं, सो लेट्स सी, यहाँ तक भी प्राइस एक बार आके नीचे जा सकता है। दोनों केसेस हो सकते हैं। अभी लुक्रेटिव लग रहा है प्राइस, यहाँ पे बहुत सारे नए सेलर्स ऐड हो सकते हैं, एंड देन एकदम से उनका स्टॉप यहाँ पे खा के जा सकता है मार्केट नीचे। अभी जब तक यहाँ तक है ना, मार्केट यहाँ पे सेफ चल रहा है। अभी मैं बोलूँगा कि सेलर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ तक। एक बार ये एरिया क्रॉस कर जाता है ना 18,390, उसके अबव यहाँ पे, तो सेलर्स को अपनी पोजीशंस काट देनी चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे मुझे बायर्स थोड़े से स्ट्रांग लग रहे हैं, देखते हैं एक दो कैंडल्स और देखते हैं। अगर यहीं पे रहता है, सपोर्ट एरियाज के ऊपर ही रहती है 22 कैंडल्स, तो प्रॉब्लम नहीं है, बट सेलर को अब प्रॉब्लम होने लगेगी। देखिए इन लोगों के स्टॉप्स चले गए, जो सेलर्स थे इनके स्टॉप्स चले गए, जिन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाया था। हो सकता है किसी ने यहाँ पे भी लगाया, तो एक बार प्राइस आके टेस्ट करके दोबारा फॉल कर सकता है। देखते हैं क्या प्राइस वहाँ पे आके फॉल करता है या फिर पलट ही जाता है। अब क्योंकि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, तो दोनों केसेस पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना, अपसाइड पर भी एकदम बाउंस बैक कर सकता है। हो सकता है सेल साइड पर ना जाए, क्योंकि मार्केट इज एन अप ट्रेंड, कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, यहाँ तक विक टेस्ट हो चुका है। ये यहाँ तक देखते हैं क्या विक टेस्ट में पास हो सकता है। इस कैंडल के जस्ट ऊपर देखते हैं क्या यहाँ पे जो इनके स्टॉप्स लगे हुए हैं, इस कैंडल के ऊपर बहुत सारों के स्टॉप्स लगे होंगे, इस बड़ी रेड कैंडल के ऊपर। सो लेट्स सी कि यहाँ तक प्राइस आ पाता है क्या। इसके ऊपर मैं अपनी लाइन रख देता हूँ, देखते हैं। थोड़ी और पोजीशंस ऐड हुई होंगी सेल्स में, देखते हैं क्या होता है उन सेल्स का। स्टॉप लॉस अगेन वही कैंडल का लो हाई ही होगा। देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। एक क्विक मोमेंटम में जो है ना, इनके स्टॉप्स खा के मार्केट अगेन फॉल कर सकता है। उससे क्या होगा, दोनों का नुकसान होगा। बायर्स का भी नुकसान होगा और सेलर्स का भी नुकसान होगा। सेलर्स क्योंकि जो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया उनके स्टॉप्स जाएंगे, प्लस जो छोटे बायर्स होंगे उन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ तक आएगा मार्केट स्टॉप लेके देन ऊपर जाएगा। ऐसा पॉसिबल है। देखते हैं यहाँ पे क्या मार्केट एक बार स्टॉप खाता है कि नहीं, देखते हैं लाइन को क्रॉस करता है या नहीं। लाइन को ज़रा सा क्रॉस कर देगा बाय 1 पॉइंट, तो भी ट्रिगर हो जाएंगे लोगों के स्टॉप्स। लेट्स सी। एंड जो अप सेटअप बन रहा है ना, वो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सेटअप जो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है। बट यहाँ पे क्योंकि सेल्स की पावर भी स्ट्रांग है, तो मैं ऐसी जगहों पे बायर्स में इंटर्स नहीं 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 होना चाहूँगा। अभी तो फ़िलहाल नहीं होना चाहूँगा मैं। लेट्स सी 15 मिनट का चार्ट क्या कहता है। 15 मिनट पे क्या सिनेरियो बन रहा है। हाँ, दिस एरिया इज़ नॉट सेफ राइट नाउ फॉर बाइंग, मतलब इट कैन गो, बट मुझे सेफ नहीं लग रहा है अभी पर्सनली।
इट कैन बी अ गुड बाय सेटअप हियर। एक बाय का सेटअप मैं आपको डिज़ाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। प्राइस इस एरिया को क्रॉस कर जाएगा ना, एंड देन फिर हमारा इतना सा स्टॉप लॉस होगा, बट जो टारगेट होगा ना वो दैट विल बी न्यू हाइज। देखते हैं। ओके गाइज, इनके स्टॉप्स ट्रिगर हो चुके हैं, इन लोगों के स्टॉप्स ट्रिगर हो चुके हैं। अब देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है। ठीक है, सो दैट हाइपोथेसिस वाज करेक्ट कि मार्केट यहाँ तक आया। अब देखते हैं मार्केट क्या यहाँ से एकदम ही ऊपर भाग जाता है, क्या होता है देखते हैं। ये वाला गाइस जो मैंने सेटअप बोला ना, इसलिए मुझे सेफ नहीं लग रहा है। यहाँ पे सेलर्स काफ़ी एक्यूमुलेट हुए हैं। सो अभी इस एरिया में बाइंग करना अच्छा नहीं है। इट इज़ वेरी क्लोज टू दी सेलर्स, सेल्स के पास में बहुत ज़्यादा क्लोज है। सो यहाँ पे बाइंग मुझे अभी सेफ नहीं लग रही, इसलिए मैंने बाय का साइड का भी सेटअप नहीं लिया अभी। अब देखिए इनका स्टॉप जा सकता है, बहुत सारे बायर्स यहाँ पे भी एंटर हुए होंगे, इनका स्टॉप जाएगा, फिर इनका स्टॉप जाएगा, फिर मार्केट सेकंड बाउंस में अप साइड की तरफ एक बार दोबारा जा सकता है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो इट इज़ लाइक अ होल स्टोरी गाइस, इट इज़ लाइक अ होल कंप्लीट स्टोरी। तो स्टोरी अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप लंबे टारगेट्स ले सकते हैं, बट ऑनेस्टली टारगेट्स नास्डैक में तो जल्दी लेने चाहिए। और नई पोजीशंस आप बना सकते हैं जब भी आपको नई स्टोरी समझ में आती है, बट ट्राई टू टेक शॉर्टर, आई मीन थोड़े से कम टाइम फ्रेम में आप जो है एंट्री एग्जिट्स करिए। सो उस मामले में नास्डैक इज़ वेरी गुड, क्विक मोमेंटम देने में बहुत अच्छा है। ओके, सो नाउ जो मैंने बोला कि मार्केट यहाँ पे इनके स्टॉप्स खा सकता है एंड देन पलट के दोबारा ऊपर जा सकता है, सो दैट इज़ अनदर पॉसिबिलिटी। अभी यहाँ पे भी अगर शॉर्ट साइड में एंटर होते हम लोग उस हाइपोथेसिस पे, तो भी हमें 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल चुका है इतने से पे, राइट। देखते हैं, अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार इनका स्टॉप खाएगा मार्केट और फिर ऊपर जाएगा। नहीं भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जा सकता है। बट इनका स्टॉप ज़रूर टेस्ट करना आएगा। यहाँ तक ही आना है, बस कुछ कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बस यहीं तक आना है। एंड गाइस एट दिस स्टेज आप समझ लीजिए मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आउट हो चुके हैं, तो मार्केट की अब जो इंटेंशन होगी ना वो अम, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अम, अभी फ़िलहाल जितनी लिक्विडिटी लेनी थी ना मार्केट्स को, मार्केट्स ऑलमोस्ट मैक्सिमम ले चुके हैं। अभी एक बार इन इन लोगों को भी लिक्विडेट करके मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हो सकते हैं, फिर देन नया मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं कहीं और का। बट देखते हैं क्या इनके लोस टेस्ट होते हैं, देखते हैं। बहुत सारों की ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुके होंगे अभी तक जो बाय साइड पर थे, बट देखते हैं कि मान लीजिए किसी ने ट्रेल नहीं भी किया है तो क्या मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस हिट करता है, देखते हैं। ज़्यादा दूर नहीं जाना है। ओके गाइज, उनके स्टॉप लॉसेस भी हिट हो चुके हैं। अब देखते हैं मार्केट्स कितनी दूर जाते हैं यहाँ से। और जो ओरिजिनल हमारा सेटअप था उस पर 1:3 क्रॉस हो चुका है, बट क्या 1:4 हो पाएगा? मुझे नहीं लगता अब हो पाएगा। अब मार्केट जो है ना लिक्विडिटी ले चुके हैं, अब इससे ज़्यादा लेना मतलब खुद का नुकसान है बड़े पार्टिसिपेंट्स का यहाँ पे, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है तो वो किसको बेचेंगे। सो इनका स्टॉप हो गया ट्रिगर। अब देखते हैं मार्केट, मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी देर साइडवेज हो सकता है, उसके बाद नेक्स्ट मोमेंटम कुछ देर बाद आ सकता है जब और पार्टिसिपेंट्स आ जाए मार्केट में। अभी तो सब क्योंकि फियर के कारण आउट हो चुके हैं, सब लोग आउट हो चुके हैं, सब लोग लॉस ले चुके हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग। देखते हैं हम, अभी जो नियरेस्ट बायर्स है ना वो ये बैठे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है मार्केट इनका टेस्ट करने आ जाए लो एक बार, बट यहाँ से मार्केट एक बाउंस भी दिखा सकते हैं।
नियरिंग 1:4। ओके, 1:4 भी हिट हो चुका है इस ट्रेड में। व्हाट अबाउट 1:5? तो भाई यहाँ तक जो सहन करना होता है ना बहुत मुश्किल होता है। और हम लोग एक बार ट्रेड में होते हैं ना तो ये स्टोरी समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ट्रेडिंग बोलना आसान होता है कि इजी होती है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब हमारी पोजीशन बनी होती है ना तब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। मुझे लगता है प्राइस पलट के यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। बहुत सेलिंग आ चुकी है, बहुत सारे स्टॉप लॉसेस आउट हो चुके हैं यहाँ से। मार्केट जा सकता है थोड़ी देर साइडवेज जाके अपसाइड की तरफ एक मोमेंटम और ट्राई कर सकता है। एनीवे मुझे तो मेरे स्टाइल का कोई अच्छा सेटअप अभी दिख नहीं रहा है। मार्केट क्योंकि अभी स्ट्रगलिंग एरिया में ना, ऑल टाइम हाइस के आसपास मैं वैसे भी ट्रेड करना पसंद नहीं करता हूँ। क्रेजी गाइस, इट इज़ ऑलमोस्ट नियरिंग 1:5। आई मीन प्रैक्टिकली इसको लेना डिफ़िकल्ट होता अगर आप वेट करते टारगेट का, तो पॉसिबिलिटीज़ थी। पर क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइस ने बहुत बार टेस्ट किया है। सो बहुत बार तो नहीं बोलूँगा, एक बार टेस्ट किया। सो इट इज़ ऑल अबाउट पोजीशन साइजिंग। कि अगर हमारी पोजीशन साइजिंग बहुत हैवी है तो हम लोग इतना ड्रॉ डाउन नहीं झेल पाते। ड्रॉ डाउन तो खैर हुआ भी नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा था सब कुछ। क्योंकि कॉस्ट से हम लोग बेटर ऑफ ही थे। हमेशा कभी भी प्राइस हमारे प्राइस के ऊपर नहीं आ पाया है, सेल प्राइस के। लेकिन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड। बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कहना आसान होता है कि बहुत बढ़िया रिवॉर्ड मिल रहा है, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू होल्ड। यहाँ तक भी होल्ड कर लिया ना तो मैं बोलूँगा बहुत अच्छा आपने ट्रेड ले लिया। 1:2 इज़ नॉट बैड। इट इज़ नॉट बैड। ऑल अबाउट स्टोरीज गाइस। अब वो होता क्या है ना कि हम लोग मार्केट में एंटर होने के बाद भूल जाते हैं कि हमें स्टोरी पढ़नी है। हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम अपनी पोजीशन में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हमें कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। इट हैज़ गिवन गुड रिवॉर्ड्स गाइस। मतलब इस ट्रेड ने तो बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया है। सो आई एम होपिंग कि मैं ऐसे ही स्टोरी रीड कर करके आने वाले दिनों में ट्रेड करूँ। मे बी पॉसिबल कि मैं आज ट्रेड ना लूँ क्योंकि मार्केट मेरे जोन्स के आसपास नहीं है। जोन के आसपास कैसे नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए इन एरियाज़ में क्लियरली कोई सपोर्ट एरिया आसपास नहीं दिख रहा है मुझे। जो नियरेस्ट सपोर्ट बना हुआ है ना मेरा, वो 18,175 के एरियाज़ का है। सो जब तक मार्केट इसके बीच में झूल रहा है तब तक मुझे एंटर होके फ़ायदा नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है ना, दिस इज़ लास्ट बाइंग एरिया। ये एरिया एक बार क्रॉस करता है, सो नेक्स्ट एरिया यहाँ तक है। विक बनी हुई है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। इसको मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ। यहाँ तक विक बनी हुई है, तो मतलब यहाँ तक बायर्स बैठे हुए हैं। सो बाइंग यहाँ से दोबारा रिज्यूम हो सकती है। सो अभी फ़िलहाल मैं एंटर होने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग सेल आया है। तो मेरा एंटर होने का मूड नहीं है। बट यहाँ पे देखिए बाइंग बायर्स यहाँ पे आए थे। सो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट फॉलो कर रहे हैं बायर्स। कुछ भी हो सकता है, बट मेरी अभी इच्छा नहीं है मार्केट्स में एंटर होने की क्योंकि मेरे लायक सेटअप मुझे दिख नहीं रहा है। इसको मैं 15 मिनट पर देख लेता हूँ। देखिए 15 मिनट पर क्या हो गया ना कि ये ब्रेकआउट फेक प्रूव हो गया।
सो हम मार्केट्स के आना नीचे तक फॉल कर सकते हैं, यहाँ तक पॉसिबिलिटी है। बट मुझे अच्छे जोन नहीं लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा चॉप्ड अप जोन है ये, तो इस जोन में मुझे एंटर होने की इच्छा नहीं है, इसलिए आई एम नॉट विलिंग टू ट्रेड हेयर। अभी मेरी इच्छा नहीं हो रही बिल्कुल इस मार्केट में एंटर होने की। देखिए इस ट्रेड में 1:5 भी हो चुका है। इट वॉज अ प्रिटी गुड ट्रेड। 1:6, 7 कुछ भी हो सकता है गाइस, यहाँ पे 1:6 तक मैं लगा के रखता हूँ। वो नेक्स्ट सपोर्ट तक जा सकता है गाइस, यहाँ पे प्राइस यहाँ तक जा सकता है डेफिनेटली। अब देखिए यहाँ तक बायर्स को दोबारा टेस्ट करने आ सकता है मार्केट, ऑलमोस्ट यहाँ तक। 1:6 इज हेयर। ओके 1:6 भी दे चुका है। 1:6 के बाद 1:7, लेट्स सी। अब यहाँ से थोड़ी बाइंग आ सकती है फ्रॉम दिस एरिया। तो गाइस आई टोल्ड यू राइट, नास्डैक में डबल टॉप्स बन के काफ़ी बड़े सेल्स आते हैं। एंड जो मेरा कल का ट्रेड था ना, वो भी कुछ इसी टाइप का था। मार्केट वॉज नियर ऑल टाइम हाइज, तो वहाँ पे डबल टॉप्स के सेटअप बनते हैं, और मैं वही कोशिश कर रहा था ट्रेड करने की। बस मेरी टाइमिंग गलत हो गई, और मोर देन टाइमिंग इट वाज माय फोमो। मेरा फोमो बहुत ज़्यादा था कल के दिन, और मेरा एनालिसिस बहुत कम था। देखिए दिस ट्रेड इज़ अबाउट टू गिव 1:7। अब कौन बिलीव करेगा इतनी प्रिसाइज एंट्री, कौन बिलीव करेगा इतनी प्रिसाइज एंट्री। सो आई नो माई एनालिसिस, मेरी एनालिसिस मुझे पता है, बट इट इज़ ओनली अबाउट एग्जीक्यूशन। वो एग्जीक्यूशन आई एम ट्राइंग टू बी वेरी डिसिप्लिन। जब तक मैं गलती नहीं करूँगा तब तक आई विल नॉट लर्न। सो दैट इज़ वन थिंग, बट एग्जीक्यूशन विल इम्प्रूव ओवर टाइम। आई एम वर्किंग ऑन इट। बहुत सारे लोगों से मुझे अच्छी एडवाइसेस भी मिली है। स्टॉकमैन ग्रुप पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनली आके मैसेज किया है, मुझे एडवाइस दी है। आई आस्क्ड फॉर दोज एडवाइजेज इन वीडियोज़ की कैसे मैं अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर सकता हूँ, एंड दे रियली took an initiative to reach out and explain ki what they think might be wrong with my trading. And so I really appreciate them for their efforts and taking a active interest in my progress. So thank you very much for that, and let's hope कि हमारी trading अच्छी रहे, and let's keep improving over time. So this trade almost gave like 1:7. Now I'm not interested in watching this trade anymore. It can go to this point, जैसा मैंने बोला 18,160 तक प्राइस आ सकता है, बट कौन होल्ड कर रहा है इसे। आई एम नॉट होल्डिंग इट। ओके गाइस, वांटेड टू गिव अपडेट ऑन दिस ट्रेड। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लेवल मैंने आपको बताया था 18,160 के आसपास, प्राइस वहीं पे आके रुका है। एंड वेरी सरप्राइजिंग, बट अ वेरी वेरी क्लियर फैक्ट कि हम लोग कैसे इतने बड़े टारगेट्स को ले सकते थे। उसके लिए मैंने क्या किया कि एक 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगाया और एक 50 सिंपल मूविंग एवरेज लगाया। 20 वाला एक्सपोनेंशियल है उसका मेथड। सो उसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ। सो इनपुट इज EMA, सो इट इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर 20, और 50 का जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज है। सो इस कॉम्बिनेशन के साथ मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया प्राइस को। 20 को क्रॉस भी किया, पर रेड लाइन इज 50 SMA, 50 सिंपल मूविंग एवरेज। तो 50 सिंपल मूविंग एवरेज को भी हम फॉलो करते आते, तो वी वुड हैव मेड ग्रेट प्रॉफिट्स अगर हमने ऊपर की साइड पे ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होता। रिस्क टू रिवॉर्ड आप देख सकते हैं 1:11.35। सो वेरी सरप्राइजिंग। और मैंने आपको बताया था इनिशियली कि जब मार्केट ऑल टाइम हाइस पे होता है और डबल टॉप्स के सेटअप बनते हैं, तो नैस्डैक जो है बहुत अच्छा फॉल करता है। सो ऐसा नहीं है कि ये फॉल पहली बार ही आया है आज। मैं ऐसे फॉल्स देखता आ रहा हूँ। मैं इस करंट मंथ में ही इतने फॉल्स देख चुका हूँ नैस्डैक के इस टाइप के कि ऑलमोस्ट आई कैन प्रिडिक्ट कि मार्केट कब डबल टॉप्स बना रहे और कब फॉल करने की चांसेस रखता है। इट इज़ ओनली अबाउट माई ओन कंसंट्रेशन एंड माई ओन फोमो दैट आई नीड टू कंट्रोल। अदरवाइज हम ऐसे सेटअप बहुत ब्यूटीफुली हर एवरी फ्यू वीक्स हम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर हफ्ते मिले ऐसे सेटअप, बट एवरी फ्यू वीक्स वी कैन गेट सच सेटअप्स। एंड नैस्डैक इज़ एन इंडेक्स दैट आई एम लविंग वेरी मच। बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडेक्स है ट्रेड करने के लिए, एंड इट फॉलोज प्राइस एक्शन टू द बेस्ट।
तो अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो इट इज़ द द बेस्ट इंडेक्स टू ट्रेड एज पर माई ओपिनियन। सो इसी के साथ गाइज आई क्लोज दिस वीडियो। मैंने आज के दिन कोई ट्रेड नहीं लिया एंड वीक हमारा ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, भले 88 पॉइंट्स के साथ क्लोज हुआ है 50,000। कल मैंने एक स्टूपिड ट्रेड और ले लिया था रात में टेस्ट करने के लिए, तो मेरा 50,077 कुछ फाइनल बैलेंस है। $10 का मैंने कमीशंस पे किया था उस ट्रेड पे। सो दिस इज़ दी अपडेट फॉर टुडे। अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मेरे साथ नैस्डैक को फॉलो करना है सो आई कैन डू अ लाइव सेशन एज वेल, जहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट करके भी ट्रेड कर सकता हूँ। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेंशन दैट इन कमेंट्स एंड हिट लाइक for this video. That's it for today, guys. Thank you very much for subscribing and keep watching.